Perfect. So we are now starting the magic book. It will go for straight 30 days, what we are practicing to harness the magic of the secret. And what is the secret? We'll get to know once we do the book. So what I request is that for next 30 days, always have your pen and a notebook ready. Because during the time of breakdown in your life, anyone who can save you is your notes and the practices of the magic book. Now we are starting with the magic book, and let's go deep into the secret, like what the magic book says. So here, now as we go down, there's an amazing thing which is said by Emerald. And the line is, by this means you will acquire the glory of the whole world. इस लाइन का मतलब क्या है? एमराल्ड जो थे वो जीसस से पहले थे इस धरती पे, और उन्होंने ये बात कही थी, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। कुछ तो ऐसा सीक्रेट है, कुछ तो एक ऐसा सीक्रेट था पहले भी पूर्वजों के पास, कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया, और वो ही एक सीक्रेट आज हमको पता चलेगा इस बुक से कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि कुछ लोगों के जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशियों से भरा होता है, लेकिन बाकी लोग वहीं बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी डेली जिंदगी में। तो चलिए शुरू कर लीजिए। What I want to ask you is, with everyone, and this is the first topic of our book, like, do you believe in magic? Just ask yourself and ask it out loud that, do you really believe in magic or not? And if you not, or even if you yes, then say out loud, yes, I believe in magic. And yes, magic is coming in my life. So now we start, and we start reading line by line, going in depth of this book. Those who don't believe in magic will never find it. And this is the truth. If you believe in magic, the magic will happen in your life. But if you don't believe in magic, then nothing can happen. You may suffer, you can complain, but magic you will be never able to see. And he is an amazing writer who told this line, Roald Dahl, and just an amazing line. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf, or the rock on the ground. You were full of excitement. When you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night. And you would count down the days to that magical night of the Christmas. और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है बाय रोंडा ब्रायन। जब हम छोटे थे तब हमारी लाइफ बहुत मैजिकल थी। हम जिंदगी की एक एक एक्सपीरियंस को बहुत एक्साइटमेंट और जॉय के साथ महसूस करते थे। अपने घर की खिड़की से बटरफ्लाइज को देखना, उनके कलर्स को देखना, बहुत एक्साइटेड हो जाना। घर में पापा गिफ्ट लेकर आए और बहुत एक्साइटेड रहते थे हम लोग अपनी लाइफ में। कुछ भी लाइफ में एडवेंचर चल रहा है, एक अलग ही लेवल का हमारे अंदर एक जोश था, एक्साइटमेंट थी, एक एनर्जी थी। टूथ का टूटना और उसे फिर तकिया के नीचे रखना एज इफ कुछ मैजिक होगा, ये सब हम सब ने करा है। क्रिसमस पर हम सबको बिलीव रहता था कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, सेंटा क्लॉज आएंगे, और वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। और कईयों को गिफ्ट मिलते भी थे। हम सबको पता है कि बाहर सॉक्स में कुछ ना कुछ होता ही था हमारे। कभी भी हमने ये क्वेश्चन नहीं करा बचपन में कि कहाँ से आया ये गिफ्ट, क्या सेंटा क्लॉज वाकई में है भी, बट ये गिफ्ट लेकिन था फिर भी। और हम बहुत एक्साइटेड रहते थे उस समय अपने उन गिफ्ट्स के लिए। तो ये जो जॉय था हमारे अंदर, ये जो एक्साइटमेंट था ये बचपन में, यही था सारा का सारा मैजिक हमारी लाइफ में।
क्योंकि इस बुक में बताया जा रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Even though you had no idea how Santa Claus could get every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly and there were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits and you believed that life was magic. मैं अभी चाहता हूँ आप अपनी आंखें बंद करें और अब विजुलाइज करें अपनी लाइफ, अपना वो चाइल्डहुड कि वो कितना बढ़िया था। सुबह आराम से उठ रहे हैं, कोई टाइम का टेंशन नहीं कि सुबह जल्दी उठ के कहीं जाना है, ऑफिस में किसी मीटिंग में, कुछ नहीं। बस आराम से उठ रहे हैं, बढ़िया खाना मिल रहा है और बस एंजॉय कर रहे हैं अपने टॉयज के साथ, अपने फेवरेट हॉट व्हील्स टॉयज के साथ या रिमोट कंट्रोल कार के साथ। बस आप एंजॉय कर रहे हो और आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। आपने जो ड्रेस मांगी आपको वो मिल जाती थी, आपने जो बुक्स मांगी आपको वो दे दी गई, आपने जो कपड़े मांगे वो आपको दे दिए गए, जो भी टॉयज मांगे, जहां वेकेशन पे आपने घूमना चाहा, जो गिफ्ट मांगा सब दे दिया गया आपको। और बहुत ही ईजिली, कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े आपको अपनी जिंदगी में। आपको हमेशा से एक बिलीफ था अपने अंदर कि मैं आसमान छू सकता हूँ, मैं तारे छू सकता हूँ। रात को अंधेरे में आसमान की छांव में तारों को काउंट करना बैठकर, ये हमारा एक्साइटमेंट और एक जॉय होता था हमेशा से कि हम इतने ज्यादा बढ़िया थे। Now, there is an exquisite feeling many of us had as a children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, difficulties took their toll on us, and we became disillusioned. The magic we once believed in as a children faded and disappeared. आज कितनों को हम देखते हैं जब हम उठते हैं तो लोग बस भागते हैं अपने काम के लिए, अपने आप को भी नहीं देख पाते सही से शीशे में। मेरे पास ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी अपने आप को ही नहीं देखा शीशे में सही से। सब भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी सबके जीवन में आ रही हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपने वो अपना एक मैजिक खो दिया। और ये हम सब ये चीज बिलीव करते हैं कि बचपन में कुछ तो था मेरे अंदर ऐसा, कुछ ना कुछ एक टैलेंट, एक काबिलियत थी जरूर कि मैं ये सारे काम मैं बहुत अच्छे से कर पाता था। शायद आप बचपन में बहुत अच्छे से पेंटिंग करते थे, आप डांस बहुत अच्छा करते थे, आप म्यूजिक बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन अब आप वही सब चीजें करने में शायद स्ट्रगल कर रहे हो। वो जो क्रिएटिव आइडियाज जो आते थे आपके पास, वो आपके लिए ब्लेसिंग थी बचपन में, और आप बहुत अच्छे से निकाल पाते थे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें। लेकिन ये चीजें अभी नहीं हो पाई। जैसे जैसे हम बड़े होते गए चीजें बदल गई हमारी लाइफ में। हम बहुत ही सैड, उदास रहने लग गए, कहीं ना कहीं और टेंशन, स्ट्रेस में, उन लोअर वाइब्रेशंस में हम आते चले गए। और इसमें गलती हमारी नहीं, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि जिंदगी जीते कैसे हैं। लेकिन ये बुक आपको सिखाने वाली है जिंदगी आखिर जीनी कैसे है। और बहुत ही बढ़िया कहा है इस बुक में। इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई एज एडल्ट्स वी लव टू बी अराउंड चिल्ड्रन, so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब छोटे बच्चों से अट्रैक्ट होते हैं। क्यूट क्यूट पेट्स हमको दिख जाते हैं, पपीज दिख जाते हैं, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उनसे, खेलने का मन करता है उनके साथ। और ये इसलिए है, वो जो सोर्स है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, पता है कि मेरा भी यही था, एक रियल नेचर, एक लव जॉय में ही है। बट अब कुछ बदल गया और शायद हमारी आत्मा वही चीज वापस मांग रही है हमसे, वही लव, वही जॉय तो अभी हमने बचपन में देखा था। And I am here to tell you that the magic you once believed in is true. And it is this illusion, adult perspective of life, that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen.
when you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. And then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of it. तो ये चीज बहुत बढ़िया है कि जब हम इस बुक को बहुत प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो ये बात पक्की है कि हम उस इनर चाइल्ड तक पहुंच पाएंगे, उस इनर मैजिक तक जो हमारे पास कभी था, लेकिन वो अभी भी वापस आ सकता है इन्हीं सब चीजों को प्रैक्टिस करके जो हम सिखाएंगे इस बुक में। और यही हमारी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारे सारे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करवाने में। और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा मैजिक एक्सपीरियंस होगा कि कैसे मैंने इस बेहतरीन मैजिक जो मुझे दिया गया था बाय द सोर्स, इसको मैंने कैसे लेट गो कर दिया था अपने जीवन में। बट अब ये मैजिक मैं अपने पास रखने वाला हूं। यू मे नॉट सी रेनडियर फ्लाई, but you will see the things you've always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. ये हम सबको पता है, हम सब ने कहीं ना कहीं मैजिकल शोज देखे हैं शायद जाके। मैंने अपने टाइम में ओपी शर्मा का देखा था मैजिकल शो जाके। हमें ये नहीं पता होता कि कैसे मैजिक हो रहा है, बट हम उसे बहुत एंजॉय करते थे। और ये बात बहुत बढ़िया है कि मैजिक हैपन्स इन द इनविजिबल रेल्म। हमें भले ही पीछे नहीं पता क्या हो रहा है, बट जस्ट एंजॉय द मैजिक। आप जो चाहते हो वो आपको दे दिया जाएगा, बट वॉट वी नीड इज टू एक्सेस दिस मैजिक। और इसको जो एक्सेस करने का जो की है वो हम सीखने वाले हैं इस पूरी 30 डेज की जर्नी के दौरान। और मुझे पूरा पता है कि बहुत मैजिक आने वाले हैं लोगों के जीवन में। सो मैं इसको आगे स्टार्ट करूं, एक बार ये पूरा फिनिश करते हैं यहाँ से। आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन? आर यू रेडी टू बी फिल्ड विद ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक व्हेन यू वर अ चिल्ड्रन? पर ये बात आप खुद से पूछो, क्या तैयार हो मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए? और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जूम पे या यूट्यूब पे, ये सबके लिए है। आर यू रेडी टू बी फिल्ड विद ऑ एंड वंडर एवरी डे लाइक व्हेन यू वर अ चाइल्ड? इफ यू आर रेडी, get ready for the magic. Because our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was given within a sacred text. और हम यहाँ से स्टार्ट करें, मैं एक बात बताऊं कि वाई द मैजिक बुक। देखो, मेरी जिंदगी में इस मैजिक बुक ने बहुत मिरेकल्स करे। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस मैजिक का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। एक टाइम था जब मेरे पास भी ना जॉब थी और ना ही क्लैरिटी थी क्या करना है मुझे मेरे जीवन में। और उस समय बस एक मैजिक था जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा था। और उस समय मुझे नहीं पता था कि एक मैजिक है। मैं जहाँ रहता था वहां पर एक पीजी में, उस समय बेंगलोर में, और 1 महीने से इंटरनेट नहीं आ रहा था वहां पर। आप सोच सकते हो, 1 महीना बिना वाईफाई के रहना। और उस बिल्डिंग में मोबाइल डेटा बहुत मुश्किल से चलता था। और मैंने एक दिन बस, मैं बहुत हार चुका था, थक चुका था कि यार किस तरीके से वाईफाई चल जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। रोज डिले रोज डिले रोज डिले आता था टेक्निकल सपोर्ट टीम से। और यही 1 महीना चला, लेकिन उसके बाद मैंने एक ही चीज कही, अब मैंने कुछ करना है। और जो मैंने किया ये प्रैक्टिस थी, जिसने रात रात के 2 घंटे में ही मुझे वापस वाईफाई का कनेक्शन दे दिया था। और उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि मैजिक वर्क्स, कुछ तो हुआ। जब मुझे बेंगलोर में एक नया फ्लैट चाहिए था, सिर्फ 2 घंटे लगे। मुझे सबको पता है कि बेंगलोर में फ्लैट ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपको अकेले रहना है, सिंगल रहना है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोगों को 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद वो 2 घंटे में हो गया। कैसे हुआ? मैं कहता हूँ ये मैजिक था। अभी रिसेंटली जब मेरा स्कैम हुआ और मेरे अकाउंट से बैंक बैलेंस जीरो हो चुका था, वो टफ फेज आ गया था, एक ब्रेकडाउन आया बहुत मेजर। लेकिन उसी समय फिर से इसी मैजिक बुक ने एंट्री ली मेरी लाइफ में और मुझे संभाल लिया, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस थी मेरे पास। और इन्हीं प्रैक्टिसेस को करते समय सरेंडर के साथ मैजिक हुआ।
और सारा का सारा मनी भी रिकवर हो गया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैजिक था। वो जो माइंडसेट, जो स्टेट था मेरा, जो फ्रीक्वेंसी जो मुझे मेंटेन रखनी थी, वो मैं कर पाया। शायद हम में से बहुत लोग नहीं कर पाए। जब भी कुछ ब्रेकडाउन आते हैं हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत टेंशन, डर, एंजाइटी फील होती है। लेकिन अगर हम ये बुक को प्रैक्टिस करें, इस मैजिक को प्रैक्टिस करें, देन डेफिनेटली चीजें बहुत बेटर हो सकती है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ की हेल्थ, चाहे रिश्ते, चाहे करियर, चाहे पैसा, कुछ भी हो। और यही नहीं था कि जब मैंने अपने दिसंबर में मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वही चीज करते करते 1 साल 2 साल हो गया आज। और आज भी स्टूडेंट्स लगातार आते हैं। कभी भी फ्लो रुका नहीं स्टूडेंट्स के आने का, हमेशा बढ़ता ही रहा और हमेशा आते रहे। मनी एक ऐसी चीज बन गई कि वो फ्लो फ्लो में आ रही है अब। भागना नहीं पड़ रहा है मुझे चेस करने के लिए, मनी वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आ जाता है। अभी मुझे 2 क्लाइंट्स मिले, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले, और मैं खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। और ये जो हुआ ये बहुत मैजिक था जिस तरीके से आए। और उन्होंने ये बात खुद कही कि मैजिक है कि कैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि एक पोलैंड से, एक बांग्लादेश से, और मैं इंडिया से, एक दुबई से, ये मैजिक है कि हम कैसे ये सब कुछ हो पा रहा है। बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपना बिजनेस खड़ा करने में, अपनी जॉब में, प्रमोशन में, जॉब को स्टेबल बनाने में। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार ये ट्राई करो, ये मैजिक, सरेंडर के साथ कुछ तो चेंज आएगा। ये बात की तो गारंटी है। और यही हमें करना है, इसी चीज को प्रैक्टिस। चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। अगर आप इस इमेज को भी देखो ध्यान से, बिल्कुल आपको एक इंसान दिखेगा, एक बुक है उसके हाथ में। ये इमेज बहुत ध्यान से देखने वाली है कि वो इंसान पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका एक हाथ दिख रहा है। और हाथ में बुक है, और कुछ रोशनी सी आ रही है, कुछ स्पार्कल से आ रहे हैं। और इसका मीनिंग यही है कि जो बुक जो उसने हाथ में पकड़ी है, इसमें कुछ तो कैसा रहस्य छुपा हुआ है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। इसी को आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर ये कौन सा रहस्य है। इस पूरी किताब के अंदर यही बात हुई है, बस एक ही चीज, वो है कि एक ऐसा रहस्य है जो हमारी करेगा मदद आगे ले जाने में हमको। चलो तो आगे बढ़ते हैं। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whosoever will be given more, and he will have an abundance. Whosoever does not have even what he has will be taken away from him. ये जो लाइन है ये एक बहुत बढ़िया लाइन है, लेकिन इसमें एक जो सीक्रेट है वो हटा दिया गया था। अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हटा दिया गया था। यू हैव टू एडमिट दैट when you read the passage it appears unjust, as it seems to be saying that rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in the passage, a mystery to uncover, and when you know it, in a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word that is called gratitude. और ये एक बहुत बढ़िया लाइन है जो कि बोली गई है। Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whosoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हम सबके लिए। और मैं ये चाहता हूं कि सब लोग जितने भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और जितने भी हमें जूम पर देख रहे हैं, इस लाइन को लिख लो, इसको हर जगह चिपका लो, कहीं ना कहीं अपने वॉल पर, वॉशरूम में, हर जगह, फ्रिज के ऊपर। क्योंकि यही लाइन आपको रिमाइंड करनी है बार बार। इसको रोज लिखो जब तक ये फिक्स ना हो जाए दिमाग में। Whosoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whosoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम सब ने देखा है कि हम जब ग्रेटफुल होते हैं, कहीं ना कहीं से मैजिक होते हैं और हमें वो और दिया जाता है। लेकिन हम जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं वो भी हमसे फिर छीन लिया जाएगा, जो है इस समय हमारे पास। एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि सबसे पूछा गया कि आप सारे अमीर लोगों से, एक मिलियनर से पूछा गया व्हेन यू विल बी हैप्पी। उसने कहा कि जब मैं बिलियनर बन जाऊं। बिलियनर से पूछा गया व्हेन यू विल बी हैप्पी। उसने बोला जब मेरे पास एक प्राइवेट जेट होगा। जिसके पास प्राइवेट जेट था हमने उससे पूछा और उसने कहा जब मेरे पास एक बड़ा सा मेरा प्राइवेट आइलैंड होगा। तो आप देख रहे हो कि हर बंदा हैप्पीनेस को चेज कर रहा है। जो है अभी उसके लिए ग्रेटफुल भी हो जाओ, तो हो सकता है कि जो चाहिए वो मिल जाए बहुत जल्दी। लेकिन एक ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में, कि यही वो एक सीक्रेट है सबसे बड़ा, कि रिच विल ऑलवेज बी रिचर एंड पुअर विल ऑलवेज बी पुअरर। By the revolution of one word, cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम है ऑफिस का कि टाइम ही नहीं है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है, भले ही आपके पास टाइम कम हो। हम कहते हैं 10 मिनट निकालो सिर्फ ग्रेटिट्यूड देने के लिए। हम कहते हैं आप इसको मंत्र जाप की तरह करो, बस आप वर्क करो और अपने अंदर दिमाग में बोलते रहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत जरूरी सीक्रेट है। आप आज जो भी कर रहे हो आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद आप ही का नंबर 1 ले ऑफ आने वाला है फिर, क्योंकि अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो अपनी जॉब के लिए। कि मैंने ऐसे बहुत देखे हैं कि मेजोरिटी लोग जॉब वाले कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज का। तो अगर टाइम नहीं है तो टाइम को निकालना पड़ेगा, ये आपके लिए है सबसे ज्यादा। चलो, and the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. और मैं चाहता हूं ये आपका आज का असाइनमेंट है। सबसे पहला असाइनमेंट जो अब लाइन थी, जो कि हमने देखी थी, whosoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नीचे, you are grateful you will be given more and you will have an abundance। आपको ये लाइन रोज लिखनी है बैठ के, जब तक ये दिमाग में फिक्स ना हो जाए। इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। जितना ज्यादा हो सके आप इसको रिमाइंड करो अपने ब्रेन को, बार 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 बार। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको ये लिए बहुत जरूरी है कि आप रिमाइंड करो अपने आप, कीप इट रिपीटिंग, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ आगे जाके बहुत अच्छे से। फ्रॉम द कुरान द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इक्वली एम्पैथेटिक। एंड रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम, if you are grateful I will give you more, but if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe। तो यहाँ पे कुरान में भी यही बात लिखी गई है कि ग्रेटफुल होने की कितनी बड़ी अहमियत है। और अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो बहुत हद तक हमें वो चीजें भी मिल सकती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी, कि ये सब कुछ मैजिक का कमाल है, ग्रेटिट्यूड का कमाल है। इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू फॉलो और वेदर यू आर रिलीजियस और नॉट, these words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है कि जो द सीक्रेट है ग्रैटिट्यूड, ये फंडामेंटल लॉ है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स। अगर आप इस धरती पे हो तो आपको ये लॉ फॉलो करना है। लाइक हर एक देश के अपने अपने रूल्स होते हैं, एक लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सर्टेन लॉज। उसी तरीके से इस प्लेनेट अर्थ का ये लॉ है ग्रेटिट्यूड, और हमें ये फॉलो करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अब तक यही देखा है, जितने भी मैंने लोगों को सुना है, पर्पस लाइफ का मौज करना है, जॉय, हैप्पीनेस। और अगर आप वो मौज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वो जिंदगी जी नहीं पा रहे हो, वो 5 स्टार होटल्स वाली जिंदगी, एक राजा रानी वाली जिंदगी, तो कहीं ना कहीं शायद आपको अभी तक वो पर्पस रिवील नहीं हुआ आपकी जिंदगी का।
तो अगर आप वो चाहते हो अपनी जिंदगी को जीना, एक राजा रानी वाली जिंदगी को जीना, मौज करना, हफ्ते में एक दिन काम पे जाना, बाकी दिन मौज करना, अपने फैमिली के साथ रहना, बेहतरीन गाड़ियों में घूमना, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये जो सीक्रेट है हमें इसे अपनाना पड़ेगा, हमें इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही इस सीक्रेट को और बेटर बनाएगी आपके लिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला। जो फर्स्ट 30 डेज हैं, ये सिर्फ एक ग्लिम्स है द सीक्रेट का, जो आप अभी प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इसे 2 महीना करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर फिक्स होना स्टार्ट होगा। और अगर आप इसे पूरे 30 डेज तक, 90 डेज तक बल्कि कर पाते हो, तो ये आपके ब्लड में आ जाएगा। और यही हम चाहते हैं कि आपके दिल के अंदर, आपकी एक एक खून की बूंद के अंदर ये ग्रेटिट्यूड पहुंच जाए। आप इतने ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओ अपने जीवन के लिए कि आपसे बड़ा थैंकफुल इंसान किसी ने कभी देखा ही ना हो। क्योंकि मैं बहुत वक्त से बहुत सारे रिच पीपल को मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर उन्हें बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, और मैंने सब में एक चीज देखी है, वो है ग्रेटिट्यूड। इतना ज्यादा ये लोग शुक्रिया करते हैं, इतना ज्यादा थैंक यू की स्टेट में रहते हैं कि कमाल है। मतलब प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, लेकिन जो लेवल है इनका ग्रेटिट्यूड का वो बहुत ज्यादा है। और ये चीज हमें सीखनी है कि कैसे हम इस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, इस थैंक यू के लेवल, शुक्राना के लेवल। चलो अब आगे बढ़े। इट्स यूनिवर्सल लॉ। Gratitude operates from the universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, light attracts light. अब आपने ये चीज पढ़ी होगी कहीं ना कहीं अपने स्कूल में, इन सब चीजों के बारे में, एटम्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। The formation of an atom, the movement of planets are like attracts like. And it's all because of law of attraction that the cell of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है आप सबके ऊपर कहीं ना कहीं। तो दे आर एनर्जी टू। वट एवर यू थिंक, आप जो भी सोच रहे हो इस समय, जो भी फील कर रहे हो, आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो पैसों के लिए और आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप उसी फीलिंग में हो कि आपके पास पैसा है ही नहीं, और आप वही अट्रैक्ट करोगे बार बार कि आपके पास नहीं आएगा पैसा। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है मेरे हाथ में। हमने ये बहुत देखा है सुनते हुए अपने घर में कि पैसा टिकता नहीं है। पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि आपने वैसा सोच रहे हो, आप वो फील कर रहे हो, क्योंकि पैसा नहीं टिकता है। और जो लोग सोचते हैं कि उनपे बहुत पैसा है, वो कहीं ना कहीं उनपे बहुत अच्छा पैसा आता है। ये हमारी थॉट्स और फीलिंग्स हैं सारी की सारी। जब हम सोचते हैं कि आई हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है अपने स्पाउस के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। कहीं ना कहीं अगर आप सोचते हो कि शायद मेरे में कुछ कमी है, कि मेरा रिश्ते अच्छे नहीं टिकते हैं बिल्कुल भी, मेरा डिवोर्स हो जाता है, मैं मल्टीपल शादियां कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग है, आप वो फील कर रहे हो, क्योंकि इसलिए आप उसे अट्रैक्ट करते हो बार बार। तो ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। वट एवर यू फील, वट एवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट। If you think, I don't have any job, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my children is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract most of the experiences. और ये बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ है जहां पर रोंडा ब्रांड ने हमें एग्जांपल्स दिए हैं कि क्या क्या लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स, और फिर वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग सोचो, व्हाट इफ यू थिंक अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, लाइक आई लव माई जॉब, माई फैमिली इज सपोर्टिव, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आई फील अमेजिंग टुडे, आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर।
or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel gratitude. The law of attraction says that you must attract more of those things in your life. ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप पॉजिटिव सोचने लग जाओ, आई हैव द बेस्ट वेकेशन, मैं सबसे अच्छा कोच हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ मैथ्स पढ़ने में, मैं बहुत अच्छा हूँ फिजिक्स में, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप ये सोचो मैं बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय हूँ अपनी कंपनी में, ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना, ये कहीं ना कहीं आपको वही सिचुएशंस अट्रैक्ट करवाएगा जहां पर आपकी लाइफ में सेम एक्सपीरियंसेस आएंगे। इट वर्क्स इन द सेम वे एज metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and more gratitude you have, the more abundance you magnetize, and it is universal law. और अब आप देख सकते हैं इट्स यूनिवर्सल लॉ। योर ग्रेटिट्यूड इज मैग्नेटिक, the more magnetic you have, the more gratitude you have, the more magnetic you are, and the more abundance you magnetize. और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, और इसी चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। You have heard saying things like whatever goes around comes around. You reap what you sow, you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. And we are also describing a principle of the universe that a great scientist, Sir Isaac Newton, discovered. So ये बात हमने बहुत जगह पढ़ी है, अपने बाइबल में भी पढ़ा है। What you sow, so shall you reap. Whatever goes around comes around. ये सब बातें कहीं ना कहीं सच हैं, जो कही गई थी पहले से ही हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर। और वो तभी हमें ये बात बता रहे थे कि हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है अपने माइंडसेट, अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत बेहतर रखना, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि व्हाट वी गिव वी गेट बैक। और यहीं पर ही बहुत ही बढ़िया एक साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने बहुत ही बढ़िया बात कही थी, और हम सब ने पढ़ा है फिजिक्स का लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम सब ने पढ़ा है ये। न्यूटन साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्लूडेड the fundamental laws of motion in the universe, which says every action has equal and opposite reaction. एक वो लॉ है जो कि मैंने शायद 10th क्लास में पढ़ा था, और ये अब तक मुझे याद है, और ये हम सब ने पढ़ा है फिजिक्स में, कि every action always has an equal and opposite reaction. तो जो आप इस समय कर रहे हो, आप अगर नेगेटिव थॉट दे रहे हो यूनिवर्स में, आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, वही तो आपको मिलेगा वापस। आप इसे इस तरीके से देखो कि शायद आपकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई आज, और आप बहुत ही एंग्री मूड में हो, आप एंग्री मूड में जाते हो ऑफिस, वहां पर किसी से आप बहस कर देते हो, उसका मूड भी खराब होता है, उसका मूड किसी और को आगे गया, उसने खराब किया, उधर से आगे गया, तो सेम वो जो एनर्जी गई गुस्से वाली, वो घूम के रात को उसी इंसान पर आएगी वापस जहां से वो शुरू हो गया था। Because what you give, get. Every action has equal and opposite reaction. अगर आपकी वही शुरुआत सुबह की धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी में हो जाए, बहुत ज्यादा थैंक यू की फ्रीक्वेंसी में, तो आप जितने लोगों से मिलोगे आप सबको थैंक यू दोगे जाके, आप सबसे बहुत अच्छे से बात करोगे, आपका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होगा, और वही रात तक आपके पास वही एनर्जी आएगी वापस लौट के थैंक यू की, और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। और ये एक वो तरीका होता है कि अपना दिन को बहुत अच्छा जब जाता है, वो थैंक यू की वजह से होता है। तो जिस तरीके से हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की, ये बहुत मैटर करता है हम सबके लिए। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks causes an opposite reaction of receiving. अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये बात बहुत साफ है, जितना ज्यादा शुक्रिया करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि यही इसका रिएक्शन होने वाला है। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बहुत ही एंग्री होके बोलूँ, गुस्सा करूँ, तो आप मुझे अपोजिट में रिसीव वही दोगे ना, गुस्सा, एंग्रीनेस, शायद मुझसे बात ना करो कभी भी, लेकिन अगर मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट, आप भी तो मुझे वही दोगे, रिस्पेक्ट, थैंक यू, लाफ्टर, तो वही सेम चीज है यहाँ पे। एंड व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू आर गिवन। बहुत सही बात है कि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ थैंक यू आप दोगे इस दुनिया में, आपको वही तो मिलेगा वापस। दिस मीन्स दैट एवरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड sets off a reaction of receiving, and the more sincerely, more deeply grateful you feel, the more you will receive. कई बार लोग पूछते हैं कि इतना सिंसियरली फील कैसे करें। देखिए ये ना प्रैक्टिस से आता है। बात तो बिल्कुल बोली गई कि द मोर डीपली यू फील ग्रेटफुल, ये डीप फीलिंग ना प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे नहीं आने वाली पढ़ के सिर्फ।
हो सकता है डे 1 पर ना आए, बट हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा 30 डेज स्ट्रेट, और फिर आप देखोगे एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और यहीं से वो शुरुआत हो जाएगी आपके अंदर कि आप इतना ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे अपनी लाइफ के हर सिचुएशंस के लिए कि आप कहोगे कुछ ना कुछ चेंज हो गया लाइफ में। तो यहाँ पे हम आज के इस क्लास को एंड करते हैं। कल से हम जाएंगे द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड में। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज डे 0 है हमारे मैजिक प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का। तो जो भी आज के 2 असाइनमेंट्स हैं आप वो जरूर करें, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने आप को याद दिलाएं। जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे अपने जीवन में, उतना ज्यादा ही आपको दिया जाएगा वापस। क्योंकि जितना ज्यादा आप शिकायत करेंगे चीजों के बारे में, आपसे आपके पास जो भी है अभी वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, कि ये यूनिवर्सल लॉ है। इसलिए थैंक यू सो मच कि आप सब आए, आप सब ने ज्वाइन किया। आपने एक नया विल दिखाया है कि वी हैव टू चेंज अवर लाइफ, और यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो एक नई जर्नी में। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ मैजिक। यहाँ पे एडवेंचर होने वाले हैं, बहुत सारे एक्साइटमेंट वाले एडवेंचर। तो आपसे कल मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।